بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم مل کر بہت اچھے طریقے سے دینی خدمات سر انجام دے سکیں۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا ہے؟ خرجوا من دیارہم، جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ حذر الموت، وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے گھروں میں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کے لیے کہا مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر زندہ کیا ان کو۔ یعنی اس آیت کے آگے جہاد کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ بطور تمہید اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیلی، تو یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مر جانے کے خطرے کی بنا پر اپنا بوریا بستر لپیٹ لیا اور ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے اور سمجھے کس طرح موت سے وہ بچ جائیں گے۔ ابھی کسی منزل پر بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ راستے میں انہیں موت نے آ لیا۔ وقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کا سب مر جاؤ۔ ممکن ہے وہ طاعون کے جراثیموں سے ہی مرے ہو اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا، بزدلی دکھائی، لہذا اللہ نے سزا کے طور پر ان سب کو ہی موت کی نیند سلا دیا۔ اور اگر وہ تقدیر پر بھروسہ کرتے اور اپنے شہر میں مقیم رہتے تو ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر بچ جاتے۔ کچھ مدت کے بعد حزقیل پیغمبر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، ادھر سے گزرے اور یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی اور ہر شخص سبحانک لا الہ الا انت کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس آیت میں موت سے نہ ڈرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادھر کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان کو مار دیا، تو پھر وہ نبی کی دعا پر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب اللہ تعالیٰ ادھر جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ وقاتلوا، لڑو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں موت سے نہ ڈرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلی آیت کا مفہوم یہ تھا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جہاد میں جانے والوں کو بھی موت کے منہ سے بچا لے اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی موت سے دوچار کر دے، یا جو یہ موت سے بھاگ کر نکل کھڑا ہو اور راہ میں ہی موت کی اللہ نیند سلا دے، اور چاہے تو مردہ کو از سر نو زندہ کر دے۔ موت اور زندگی صرف اور صرف اللہ کی اختیار میں ہے، لہٰذا تمہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़िंदगी भर जहाद ना किया हो और ना उसके दिल में जहाद करने का ख्याल पैदा हुआ हो, वो मुनाफिक की मौत मरता है। मुस्लिम की हदीस किताबुल जिहाद में। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कर्ज़ हसना से मुराद ऐसा कर्जा जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए फुकरा, क़राबा, मसाकीन को दिया जाए और अदायगी के लिए इन्हें तंग ना किया जाए और ना ही कर्जा देने के बाद इन्हें जितलाया जाए और ना इनसे किसी किस्म की बेगार ली जाए। अगर मकरूज़ फिल वाक़या तंग दस्त और अदायगी से माजूर हो तो उसे माफ़ कर दिया जाए। और अल्लाह को कर्ज़ हसना देने का मफ़हूम इससे भी वसी है, जिसमें इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की तमाम सूरतें आ जाती हैं। इसमें जहाद की तैयारी पर खर्च करना, मुजाहिदीन की माली इमदाद करना और मज़मून की मुनासिबत से यहाँ यही सूरत दुरुस्त मालूम होती है कि ऐसे कर्ज़ हसना को अल्लाह 700 गुना तक ले जाता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा तक बढ़ा देता है। और इससे बढ़ोतरी का इन्हिसार दो बातों पर होता है, एक ये कि खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया जाए और दूसरा ये कि दिल की पूरी खुशी के साथ दिया जाए। नहीं, साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि खर्च करने से तुम्हारे मालों में कमी नहीं आएगी और कमी आ जाने से के डर से अल्लाह की राह में खर्च करने से गुरेज न करो, क्योंकि माल में कमी पेशी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में एक दूसरे मकाम पर है, फरमाया जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो अल्लाह तुम्हें उसे नेमल उसका नेमल बदल अता फरमाएगा। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बाद मूसा इस क़ालू लिनबिय्यिन लहू बअस लना मालिका। ऐ मेरे पैगंबर, क्या आपने देखा उन सरदारों की तरफ बनी इस्राइल में से मूसा के बाद, जिस वक्त उन्होंने कहा अपने नबी के लिए मुकर्रर कर वास्ते हमारे एक सिपा सलात, हम जहाद करेंगे अल्लाह की राह में। यानी बनी इस्राइल में जो दस्तूर रहा है कि इनके हुक्मरान भी अम्बिया ही हुआ करते थे। कहीं इन्हें उनके पास मुकदमात के फैसले होते और उनकी सरकर्दगी में जहाद किया जाता था। वह लोगों ने सही निज़ाम खिलाफत को राइज किया था और यही वो सियासी निज़ाम है जो इस्लाम का जुज़ है। मगर इन लोगों ने दूसरे ममालिक की देखा देखी जिनमें निज़ाम ममलूकियत राय था, अपने बूढ़े बनी इस्माइल से मुतालबा कर दिया कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम उसकी क़ियादत में जहाद करें। हकीकतन उनका ये मुतालबा महज जहाद से राह फरार की एक सूरत थी जो उनकी बुज़दिली पर दलालत करती थी। उन्होंने रंग में यानी पेश किया कि तुम बूढ़े हो गए हो और हम एक नौजवान क़ियादत दरकार है और कायद जो है इनका मादा परस्त नज़रों से वही हो सकता है जो बादशाह की तरह ठाट बाट करता है। राह फरार इख्तियार न करोगे, जिसके जवाब में उन्होंने यानी सिर्फ नबी कहने लगा कि अगर अल्लाह मुकर्रर कर दे तो तुम कहीं राह फरार ना इख्तियार। वो कहने लगे क्यों हम ऐसा करेंगे? काला फरमाया हल असीतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू। आगे कहा कालू व मालाना अल्लाह नुक़ातिल फ़ी, क्यों ना लड़ेंगे? कद उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, अपने अपने घरों और बेटों से हमें निकाल दिया गया है। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, अल्लाह के फरमाते जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ, तवल्लो इल्ला कलीलुम मिनहुम, बहुत फिर के उनमें से मगर थोड़े उनमें से। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जानने वाला है ज़ालिमों। यानी जिस वक्त जिहाद फर्ज हुआ तो उन्होंने कन्नी कतराई, तमाम फिर गए। वकाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, और उनके जो नबी समूल थे उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को तुम्हारा सिपा सलार, तुम्हारा जर्नैल मुकर्रर कर दिया है। जिस वक्त देखा तालूत को, कहने लगे अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, उसको हम पर क्यों हुक्मरानी होगी? वनहनु अहक्कु बिल मुल्क, हम इसका ज्यादा हक रखते हैं उससे। वलम युता सअत मिनल माल, उसको माल की कुशादगी नहीं मिली, उसके पास माल नहीं है। तो आगे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने उसको तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुमने अल्लाह से दुआ करवाई थी, मैंने दुआ की तो अल्लाह ने
तालूत को तुम्हारा सिपहसालार मुकर्रर कर दिया है। वज़ादहु बसतन फिल इल्मी वल जिस्म, माली ताकत ना देखो, अल्लाह ताला ने उसको इल्म और जिस्मानी यानी इल्मी और जिस्मानी ताक़ुव्वत अता की हुई है। वल्लाह यानी इल्म है उसके बाद और जिस्म की ताकत है। वल्लाह युती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह देता है बादशाही अपने जिसको चाहता है। वल्लाह वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़े वसी इल्म का मालिक है। वकाल हम नबी मिन आयात उनके, और उनके नबी ने कहा यानी ये उसके बादशाही की निशानी ये है कि याद यक ताबूत, तुम्हारे पास ताबूत आएगा, फिर ये सकीना, उसमें यानी संदूक में, वो बनी इसराइल अहद का संदूक कहते थे, जिसमें आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात रखे हुए थे। मसलन पत्थर, वो तख्तियाँ जो कि कोहे तुरू अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को अता की थी, और तौरात का वो असल नुस्खा जिसे मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद लिखवाया था। एक बोतल में मन था जो बनी इसराइल पर नाज़िल हुआ था, और नीज़ इसमें वो असाए मूसा भी था जो सांप बन जाता था। जो कुछ भी था बनी इसराइल को सुकून कल्ब का वो सामान इस संदूक में महफूज, और ये हर वक्त उनके पास रहता था। जब दुश्मन से जंग होती तो इस संदूक को आगे रखते, और इसकी अलाम यानी उसको आगे रख लेते थे, और इसकी वसातत से अल्लाह फतह नुसरत की दुआ करते थे अल्लाह से। एक लड़ाई के मौके पर बादशाह मुशरक जो जालूत ने उन पर गालब आकर उनसे वो संदूक छीन लिया, और वो लोग अपने साथ ले गए। इस संदूक के छिन जाने को बनी इसराइल अपनी नहूसत समझते थे कि नहूसत हम पर आ गई है, और उसकी मौजूदगी जो है वो फतह नुसरत का निशान था। तो उसमें यानी अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये बताया कि अगर तालूत के दौरे हुकूमत में वो छीना हुआ संदूक तुम्हें वापस मिल जाए तो समझ लेना कि तालूत फिल वाकई ही अल्लाह ने बादशाह मुकर्रर किया है। चुनाचे हुआ ये, इन छीनने वालों ने मुशरकों के शहर में वबाएं फूट पड़ी। उन्होंने इस संदूक को गालबन अपने लिए नहुसत समझा, और एक बैल पर रख कर इस संदूक को उसे हाँक दिया। चुनाचे वो फरिश्ते इस बैल को हाँक कर बनी इसराइल तक ले और उसे तालूत के घर के सामने छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने की तरफ से बनी इसराइल पर अतमाम हुज्जत होगी, और दूसरी तरफ बनी इसराइल के हौसले बढ़ गए, और उन्होंने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। फरमाया उसके बादशाह की निशानी है कि वो तुम्हारे पास वो संदूक लेकर आएगा, उसमें आले मूसा और आले हून का तरका पड़ा हुआ है, तहमिलुल मलाइका, उठाए होंगे उसको फरिश्ते। इन नफीस ज़ालिकल आया, बेशक भी जिसके अलबत्ता निशानी है, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले, अगर तुम ईमान वाले तो उसमें निशानी है। ये हमने आज पढ़ा है दूसरे पारे का 16वां रुकू, और सूरत बकरा का 32वां रुकू। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से हमारा कुरान का जो रिश्ता जुड़ा हुआ है अल्लाह मजबूत करे। आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका 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 व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला को खुश रखे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला